Okay. सर वो ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा पता नहीं ब्राइटनेस जरा ज्यादा सा। करना, आई थिंक मैं चेक करता हूँ, बाकी आई थिंक सो मैक्सिमम ब्राइटनेस है यहाँ पे मैक्सिमम। जी, yesterday we were talking about वर्टिकल सर्कल। अब उससे आगे हम चलेंगे। वर्टिकल सर्कल हो गया था हमारा। अब नेक्स्ट जो वर्टिकल सर्कल के बाद हमें बैंकिंग का टॉपिक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर साथ ही आ जाओ ग्रेविटेशन स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, some student can invite रायहा, she is in the group, उसको इनवाइट कर देंगे रायहा को। Students, anybody can invite रायहा। बैंकिंग, लिखें जरा बैंकिंग की डिस्क्रिप्शन लिखें, तो फिर इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लिखिए जी। when we are taking turn of a car, when we are taking turn of a car on a circular track, when we are taking turn of a car on a circular track, then in order to maintain necessary centripetal force, we have to turn the car with a certain angle. Then in order to maintain necessary centripetal force, we have to turn the car with a certain angle. This calculation of the angle to maintain centripetal force, is known as banking. मैं रिपीट करता हूँ स्टार्ट से। When we are taking turn of a car on a circular track, then we have to turn the car with a certain angle to maintain necessary centripetal force. The angle of this calculation is known as banking.
The angle of this calculation is known as banking. आगे नई लाइन से लिखिएगा, similarly न्यू लाइन से लिखिएगा, if a aeroplane, similarly if some aeroplane is taking turn in air, similarly if some aeroplane is taking turn in air, then again we need to turn at a certain angle. Then again we need to turn at a certain angle to maintain the centripetal force. Then again we need to turn at a certain angle to maintain centripetal force. Like suppose this is a roundabout where you are driving your car. If let's say at this position, if you are going, suppose यहाँ पे आप इस position पे गाड़ी चला रहे हैं. According to the turning of this roundabout, you have to turn your car with a certain angle. आपको steering को एक certain angle पे turn करना होगा, such that it can maintain its contact force and necessary centripetal force. ठीक है. अब इसको जो centripetal force required है, that force is pointed towards the center of the circle. If I mark this full circle, तो ये centripetal force होगी जो circle के center की तरफ आएगी. And in order to maintain this force, must we need to turn the car at a certain angle. एक certain angle पे आप turn करोगे गाड़ी को, so then you can maintain the contact force. You can get this necessary centripetal force. अब किस angle पे आपने turn करना है, the calculation of this angle is known as banking. Because you know that अगर आप एक straight road पे गाड़ी लेके जा रहे हो, तो you hold the steering in a straight certain position. ऐसे सीधा पकड़ा होता है. But when you will be at the roundabout, then you will turn the car with a certain angle. अब एक certain angle की जो turning आ रही है, the calculation of this angle would be the banking. अगर आप वो angle maintain नहीं करते, like आप roundabout पे तो आ गए हो, but still you hold the steering in a straight position, तो आपकी गाड़ी obviously वो सर्कल से आउट हो जाएगी. या अगर आप उसको ज्यादा डीप एंगल से टर्न कर लोगे तो तभी वो एक्सीडेंट के चांसेस हैं. मस्ट यू नीड टू मेंटेन अ एंगल ताकि आपकी गाड़ी राउंडअबाउट से स्लिप नहीं हो और उसको सेंट्रिपेटल फोर्स भी मिल जाए. तो एंगल की जो कैलकुलेशन है उस चीज को हम बैंकिंग का नाम दे देंगे. सिमिलरली टेक अ एग्जांपल ऑफ एरोप्लेन. like suppose this is an aeroplane which is flying in air at a certain height. ये भी बिल्कुल सीधा जा रहा है. But when aeroplane will take turn, उसमें जैसे यू टर्न करना है, definitely pilot will maintain a certain angle of this turning. वो एक certain angle पे उसको turn करेगा, so that easily aeroplane can be turned और centripetal force maintain हो जाए. तो वहां पे भी जो angle की जो calculation है, that is known as banking. अब इस angle को देखते हैं कैसे calculate करना है हमने. अच्छा, I will show one thing. आप इस तरह मैं कंसीडर करूंगा कि सपोज दैट एज यू नो कि एक हेलीकॉप्टर ले लो, उसके टॉप पे एक फैन सा बना होता है. हेलीकॉप्टर जब व्यू स्ट्रेट जा रहा है तो उसका जो फैन है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगा. आई शो दिस इज अ फैन कनेक्टेड एट द टॉप ऑफ द हेलीकॉप्टर और ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जा रहा है. अभी एक सर्टेन हाइट पे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है. ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट इट इज फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट पोजीशन. अब इस स्ट्रेट पोजीशन में क्या होता है कि ये इसका हम लोग सरफेस एरिया शो कर देते हैं. देयर विल बी द वेट. अभी ये टर्न नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रहा है. ये उसकी टॉप पोजीशन हम दिखा रहे हैं. देयर इज अ वेट एंड ऑपोजिट टू द वेट देयर विल बी अ लिफ्टिंग फोर्स ऑफ द एयर. इंजन का एक थ्रस्ट होगा और एक लिफ्टिंग फोर्स उसको मिलेगी. वो जो लिफ्टिंग फोर्स है, आई मार्क इट विद कैपिटल L लेटर. L is equal to lifting force.
lifting force. When it is going straight, then both forces will be opposite to each other. जब वो एरोप्लेन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रहा है ना, ऐसे एक लाइन में स्ट्रेट एक सर्टेन हाइट पे फ्लाई कर रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड है और वेट के ऑपोजिट वो लिफ्टिंग फोर्स आ रही है एंड बोथ फोर्सेस दे आर बैलेंस्ड विद ईच अदर, जिससे वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर पाता है. बट एज दिस एरोप्लेन फ्रॉम दिस स्ट्रेट पोजीशन इट विल टेक टर्न. जैसे ये टर्न करेगा, अब वो जो ये जो मैंने फैन शो किया हुआ है विच इज इन द स्ट्रेट पोजीशन, एज इट विल टेक टर्न ये ऐसे टिल्ट पोजीशन में आ जाएगा. अब वो टिल्ट पोजीशन उसकी मैं शो करता हूं. अब ये उसको टिल्ट पोजीशन में दिखा रहा हूं. दैट वाज स्ट्रेट पोजीशन, नाउ इट इज टेकिंग टर्न. अब ये टर्निंग पोजीशन में आ रहा है. इन टर्निंग पोजीशन रिमेंबर वेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. वेट तो चाहे वो स्ट्रेट जा रहा हो या वो टर्न ले रहा हो, इन एनी केस वेट वुड बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. बट ये जो लिफ्टिंग फोर्स होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया. अब पहले सरफेस एरिया यू स्ट्रेट था, लिफ्टिंग फोर्स वाज स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड. बट जैसे ही सरफेस एरिया यू होगा, ये लिफ्टिंग फोर्स इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर आ जाएगी. ये इस तरह से ये लिफ्टिंग फोर्स आपके पास यूं परपेंडिकुलर आ जाएगी. नो वी एक्सटेंड इट. इस लाइन को जरा मैं एक्सटेंड कर देता हूं यहां पे. Now you can see that this lifting force it is perpendicular to the plane of this area. ये जो plane बन रही, plane means उसका surface area बन रहा है. Lifting force इस पे perpendicular है, weight ground पर है. And in this case, no weight will make a certain angle with this lifting force. ये lifting force का कह लो vertical के साथ एक angle आ रहा है. According to this angle, अब इसके मैं component बना देता हूँ. अब इसमें यूं होगा कि लिफ्टिंग फोर्स नो इट हैज टू कंपोनेंट्स. इसका जो कंपोनेंट होगा L cos थीटा which is along the theta component क्या बनेगा L cos theta. This L cos theta it will balance the weight. ये वेट को बैलेंस कर देगा. L cos theta वेट को mg को बैलेंस कर देगा. But this component L sin theta it will rotate the body in the circle. ये सर्कल के सेंटर की तरफ इसको रोटेट करेगा. तो L sin theta जो होगा that will provide centripetal force. L sin theta आपके पास unbalanced force आएगी. It is pointed towards the center of the circle and it will give you centripetal force. तो हम लिफ्टिंग फोर्स के कंपोनेंट बना के उनको इक्विवेलेंट कर लेंगे. The vertical component of this lifting force which is L cos theta it will balance the vertical weight, while L sin theta it will be towards the center of the circle and that will provide necessary centripetal force. तो ये m स्क्वायर ओवर r के बराबर हो जाएगा. इसको मैं रिलेशन 1 का नाम दे दूंगा. अभी हम टर्न ले रहे हैं, टर्न वाले पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं. दिस इज रिलेशन नंबर 2. अब मुझे एंगल का रिलेशन निकालना है. अब मैं यूं करूंगा कि डिवाइड 2 by 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड कर देता हूं. लेफ्ट साइड डिवाइड विद लेफ्ट साइड, राइट साइड विद राइट साइड. मैं करना क्या चाह रहा हूं, आई वांट टू फाइंड अ रिलेशन फॉर द एंगल. कि कितने एंगल पे मुझे टर्न करना है, मुझे वो एंगल कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं. इधर ये l कैंसिल आउट हो जाएगा.
ये आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा रह जाएगा, ये एल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइड पे जो राइट साइड वाली रेशियो है एम वी स्क्वायर ओवर आर multiply by. You know that these are double ratios. So first ratio you will write as it is और lower ratio का reciprocal ले लोगे. ये weight के नीचे you know that अगर nothing कुछ भी नहीं है तो 1 है, mg over 1 होगा. तो इसका reciprocal आप ले लोगे तो weight will shift in the denominator. सर ये आखिरी जो आपने इक्वेशन लिखी है सर वो ब्लर आ रही है बार बार जी सर। ये जो दूसरे मतलब कॉलम में आपने वो लिखा है ना सर इक्वेशन, हाँ 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 ये क्या हो रहा है? नेट का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। अच्छा ये mm से कट गया, ये साइन ओवर कॉस ये tan थीटा बन जाता है, और यहां से ये आ जाएगा v स्क्वायर ओवर r इंटू जी। मैं एक बार लिख लूं ना, फिर पूरा मैं आपसे फीडबैक लेता हूं। अब ये नोट करें तो मैं सारा एक्सप्लेन करता हूं इसको, सारा नोट करें। जी जी डन, लिख लिया बच्चे। देखिए अगर कोई चीज रीडेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो मुझे बताइएगा, फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड और राइट साइड, फ्रॉम एनी वन साइड। जी मोहिबुल्ला आप बता रहे थे कुछ, शायद आपको ये साइड क्लियर नजर नहीं आ रही। नो इज दैट क्लियर? स्टूडेंट जैन को, जैनुल आबिदीन को इनवाइट कीजिएगा आप में से कोई। अच्छा नो ही इज इन द क्लास। अच्छा देखो यार बच्चे, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज, फिर मुझे बताना है कुछ स्टेप जो नहीं समझ आ रहा। मैंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम we have make components of the lifting force. The vertical component of the lifting force L cos theta was equal to the weight. ये weight के against आ रहा था, मैंने इसको इससे बैलेंस कर दिया। This L sin theta was towards the center of the circle that will provide centrifugal force mv square over r. I will get this equation number 1. This is equation number 2. Now by solving these two equations, I want to find relation for the angle. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? I divide this equation 2 with equation number 1. Left side I will divide with the left side, right side I will divide with the right side. तो ये मैंने इनको डिवाइड कर दिया। This L will be cancel out, sin theta over cos theta मेरे पास रह जाएगा, और इधर ये mv square over r first ratio I will write as it is, और lower ratio का reciprocal ले लोगे तो you will get this thing. Now this m will cancel out, sin over cos you know that becomes tan theta, तो ये मेरे पास tan theta हो जाएगा, और राइट साइड में मेरे पास v square over r into g ये आ जाएगा। थीटा सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो tan को उधर इन्वर्स कर दो, तो थीटा वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर ओवर rg। अब v क्या है, r क्या है, g क्या है, ये नोट करें जरा। v is the linear velocity, नोट करें, v is the linear velocity, इस रिलेशन में v linear velocity है, r is the radius of the circle, r is the radius of the circle,
V is linear velocity and R is radius of the circle and G is the gravity. Okay? If I want to calculate this angle, then examiner will provide me linear velocity V and also radius of the circle. सर किधर चले गए? जी, सो रिमेंबर ये हमारे पास थीटा का रिलेशन आ जाएगा जी. इफ यू वांट टू आस्क एनी स्टेप रिगार्डिंग दिस थीटा, ये जो मैंने कैलकुलेशन की, इनमें से कुछ स्टेप पूछना चाहते हैं तो बोलें प्लीज. स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनी स्टेप फ्रॉम दीस कैलकुलेशंस, इज दैट क्लियर? और पूछना है तो बोलिए प्लीज. इट्स ओके बॉयज, गर्ल्स? ठीक है जी. अगर बेटा पूछना है कोई स्टेप इसमें से नहीं, कोई स्टेप समझ आया तो यू कैन आस्क मी.
अब बोलें प्लीज। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दिस इज अबाउट ग्रेविटेशन। ये सर्कुलर मोशन सारा कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, ग्रेविटेशन। हेडिंग दें ग्रेविटेशन, दिस इज सेकंड न्यू चैप्टर। अच्छा, अब ये जो एंगल है ना, दिस एंगल यू कैन यूज फॉर द कार टर्निंग एट राउंड अबाउट, यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर द एरोप्लेन टर्निंग इन एयर। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो एयर में टर्न हो रहा है, चाहे वो रोड के ऊपर गाड़ी टर्न हो रही है, तो हम ये एंगल का फार्मूला ये यूज कर लेंगे। अब उसमें वेरिएशन क्या होगी, डेफिनेटली देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। Now next new chapter is about gravitation. Gravitation. Heading them gravitational field. Gravitational field. G. Write its definition. ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूं, ये न्यू चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है जो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूं। पहला कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड है, लिखें जी। इट इज रीजन अराउंड द अर्थ, इट इज रीजन अराउंड द अर्थ in which force of gravity acts. It is region around the earth in which force of gravity acts. In which force of gravity acts. It is region around the earth in which force of gravity acts. You know, आपने different types के field पहले study किए हुए हैं. We know about electric field. Electric field is a region around the charges in which electric force will act. There is a magnetic field. It is region around the magnet in which magnetic force act. Similarly, earth के around gravitational field आ जाएगा. Within this field, within this region, the gravity will act. ठीक है जी? तो ये gravitational field की definition आ जाएगी. Field means area. Area या surfaces को हम कहते हैं. आगे नेक्स्ट हेडिंग दें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखिए जी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, इसकी डेफिनेशन होगी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, पर यूनिट मास is known as gravitational field strength. Force acting per unit mass is known as gravitational field strength. Gravitational field strength. अब फोर्स किस चीज की है? You know that if you are talking about within the gravitational field of Earth, so Earth is exerting a force of gravity on the bodies. ठीक है. Similarly, अगर हम मून में चले जाते हैं तो मून का एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है. मून इज आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द masses. तो अब जो किसी फील्ड की जो फोर्स यूनिट मास पे लग रही है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. एंड डेफिनेटली विद इन द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज लार्जर as compared to the gravitational field strength in the moon. So gravitational field strength is force per unit mass. जब आप unit mass की बात करते हैं तो remember unit mass कितना होता है? That is 1 kg mass. ये डेफिनेशन बहुत सिमिलर है. इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. अगर याद हो एएस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी. वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में हमने कहा था कि दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज का मतलब हमने कहा था 1 कूलम चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो
इसी तरह से ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो फोर्स होगी दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ओवर यूनिट मास, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या बनेगा। ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस फार्मूला, ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, देखते हैं अभी। Gravitational field strength is equal to force over mass. Gravitational field strength we will show with small g letter. Force would be the weight over mass. ये basically formula weight का बनता है, W is equal to mg. तो जो g है which is known as gravitation, which is known as acceleration due to gravity, small g which is acceleration due to gravity, that is called gravitational field strength. तो ये वेट ओवर मास, यहां से आप इसको सब्जेक्ट बना लोगे फील्ड स्ट्रेंथ को। न्यूटन पर केजी, ये इसका फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा। दिस स्मॉल जी, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नोट करें तो ये बात हम करते हैं। लिखें acceleration due to gravity and gravitational field strength. Acceleration due to gravity and gravitational field strength is the same thing. Acceleration due to gravity and gravitational field strength is the same thing. ये दोनों सेम चीजें हैं। Acceleration due to gravity और gravitational field strength, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। इसी का यूनिट आप यूं भी दे सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ यू सब्स्टिट्यूट न्यूटन को अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। एज यू नो दैट न्यूटन क्या होता है, न्यूटन ओवर केजी अगर मैं डालूं तो न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू ma, न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास कर दो, तो ये केजी केजी कैंसिल आउट हो जाता है एंड यू विल गेट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इट मींस दैट कि न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको न्यूटन पर केजी में मेजर करो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करो, दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, तो ये फील्ड स्ट्रेंथ की बात होगी। एंड दिस फील्ड स्ट्रेंथ डेफिनेटली इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज लार्जर इन अर्थ एज कंपेयर टू द मून। आगे नेक्स्ट हेडिंग दें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये प्रॉपर एक टॉपिक आएगा। Newton's law of gravitation. एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर इसको डिफाइन करते हैं हम। Draw this diagram. There are two masses. एक mass m1 है, ठीक है? There is another mass m2. Distance from center of one mass to the center of other mass, ये distance small r है, and both are attracting each other. F1 m1 mass की force है, F2 this is force exerted by m2 mass, and both forces are equal. इस diagram बनाए तो हम law पे बात करते हैं। आपको पता है कि अब जितना भी हमारा गैलेक्सी सिस्टम है, इन गैलेक्सी सिस्टम ऑल प्लैनेट्स दे आर मूविंग अराउंड ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसी के बारे में ये लॉ है। लिखिए इसकी स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट
Newton's law of gravitation states that any two bodies in the universe attract each other Newton's law of gravitation states that any two bodies in the universe attract each other. फुल स्टॉप डाल के इसी में लिखो attract each other, फुल स्टॉप डाल के लिखो the force of gravity is, इसी लॉ के अंदर बात हो रही है, the force of gravity is directly proportional to the product of masses. The force of gravity is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance and inversely proportional to the square of the distance between them, मैं पूरी डेफिनेशन रिपीट करता हूं, एक बार सुन लें, अगर कोई चीज मिसिंग है तो लिख लें. Newton's law of gravitation states that any two bodies in the universe attract each other. full stop डाल के लिखो. The force of gravity is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them, सर डायग्राम की राइट साइड नजर नहीं आ रही. अच्छा जी, अब देखिए, अभी भी नहीं आ रही. डायग्राम नजर नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही. राइट साइड नजर नहीं आ रहा. राइट साइड डायग्राम की. अब ठीक है जी, अब सही है. मैंने कैमरा काफी टर्न किया, देखिएगा. इसमें देखिए राइट साइड डायग्राम में मैंने शो किया है, देयर आर टू मैसेज, m1 मैस है और m2 मैस है, और ये दोनों f1 f2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और r एक सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस है. ये हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे r भी नोट करते हैं, फिर इस पे मैं आगे बढ़ता चलता हूँ. r इज इक्वल टू डिस्टेंस between the bodies या objects. between जब कहते हो तो सेंटर टू सेंटर हमने डिस्टेंस लेना होता है. अब देखो लॉ हमारा ये कह रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है that is directly proportional to the product of masses, F proportional m1 m2. लॉ कह रहा है कि the force of gravity it is directly proportional to the product of masses. It means that if the masses of the bodies are larger, जितने ये दोनों बॉडी के masses larger होंगे, then they will strongly attract each other. जैसे आपका गैलेक्सी सिस्टम है, all planets they are huge in size, तो वहां पे ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हमें मिल रही होती है. ठीक है. So this force of gravity that depends on the amount of the object, that depends on the mass of the object. जितने इनके मैसेज लार्जर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लार्जर आएगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग होगी. दूसरा पॉइंट वो ये देता है कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इसका मतलब ये है कि अगर ये जो r डिस्टेंस है, if distance will increase, if the object will go away from each other, इनको दूर कर दो, अवे कर दो, by increasing the distance the force of gravity will decrease. It is opposite, inversely proportional to the distance. अब distance increase करोगे, force कम हो जाएगी. But कैसे कम होगी? वो relation square का आ रहा है. Square क्या show कर रहा है? Square shows that
कि इफ यू विल इंक्रीज द डिस्टेंस 2 टाइम, फर्स्ट करो व्हाटएवर अभी जो भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप 2 टाइम इंक्रीज कर देते हो, डबल कर देते हो। लेट्स से डिस्टेंस पहले 1 मीटर था, सपोज अब मैंने इसको 2 मीटर कर दिया, डिस्टेंस डबल हो गया। 1 मीटर था, मैंने 2 मीटर करके डबल कर दिया। व्हेन द डिस्टेंस विल बिकम 2, तो यहाँ पे 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगी। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि F इक्वल टू 1/r स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस को फर्स्ट करो मैंने 2 किया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम कम हो जाएगी। डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगी, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। सिमिलरली अगर यही मैं आपके पास डिस्टेंस 3 टाइम कर देता हूं, अगर मैं ये डिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज कर देता हूं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फोर्स 9 टाइम कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी ये बात हम लिखेंगे। Scientists they have proved this thing practically. Scientists they have proved this thing practically कि डिस्टेंस में जो भी चेंज आप लेके आओगे उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स वेरी करेगी। By increasing the distance, force will decrease, but simple decrease नहीं करेगी, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। लाइक डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज करोगे, फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगी। तो ये दो लॉ के अंदर 2 पॉइंट आ गए कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the square of the distance. अब इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करता हूं, कंबाइन करके हम एक फार्मूला बना देंगे। We can write देखिए if I combine these two relations, तो F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज है, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, डिस्टेंस इनवर्सली में है, डिस्टेंस नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है जी। सो यू कैन कंबाइन इन दिस, ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। नाउ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड वी पुट अ कांस्टेंट। ये कैपिटल जी हमने कांस्टेंट डाल दिया। अब ये क्या चीज है ये नोट करेंगे, कैपिटल जी क्या चीज है। इस तरह लिखें वेयर कैपिटल जी की बात हो रही है, जी इज known as universal gravitational constant, where G is known as universal gravitational constant, where G is known as universal gravitational constant। ये कैपिटल G जो है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डेटा बुकलेट में हमें वैल्यू गिवन होती है इसकी, नोट करें। G की वैल्यू हमारे पास आएगी 6.67 into 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस यूनिवर्सल कांस्टेंट, डेटा बुकलेट में गिवन होती है। तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा F is equal to G m1 m2 upon r square, where G is the universal gravitational constant will be given to you. M1 is the mass of one body, M2 is the mass of second body, and R is the distance between the objects. So this formula is mathematical form of Newton's law of gravitation. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बोलें, बाकी फिर कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कल पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसका, फिर आगे फर्दर इस चैप्टर को हम कैरी करेंगे। ठीक है, बाकी लोगों को भी बता दें कि न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट किया हुआ है, मैं भी ग्रुप में लिख दूंगा ताकि मिस ना करें। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।